ओके, इज दैट क्लियर टू यू? ये आपको दिखाई दे रहा है? ओके. Now from today we are going to start our new language, that is Java programming. Okay, Java programming language that we have to see in this particular semester. It is one of the most powerful language that we have seen, that we have to see. Okay, this Java language is developed by Sun Microsystem in 1995. Okay. Okay, Sun Microsystem ने 1995 में जावा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल ओन बाय ओरेकल सॉफ्टवेयर. ओके, फिर ओरेकल कॉर्पोरेशन ने उसको खरीद लिया. ओके, in 1991, before 1995, in 1991 they have started to develop that particular Java programming. Okay, and that particular language is developed by James Gosling and other programmers. Okay, James Gosling and other programmers, they have started to develop this particular Java programming. Okay, and they just give it a name like Oak. Okay, now the student will Okay, so James Gosling and other programmers, they have started to develop that particular language and they give it a name like Oak. Okay, basically it is used for initially they have started work for the small scale programs, and then कुछ इंटरनेट यूजर्स को भी प्रॉब्लम होती गई, उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुए. फॉर टू रिजॉल्विंग दैट दोज पर्टिकुलर इश्यूज, this particular Java language they have developed. Okay, and after some time they have give it name like Java. Okay, initially they have give it a name that is Oak, O-A-K, Oak. ओके, उन्होंने सबसे पहले उस लैंग्वेज को ओ का नाम दिया था, फिर कुछ समय बाद उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम चेंज किया, दैट इज जावा. ओके, ओके, इट्स बेसिक फंक्शनलिटी इज नथिंग बट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ओके, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. ओके, just because of that particular feature, everyone everyone wants to use that particular software. Okay, someone wants to join this particular meeting. Everything's okay. So initially they have given it a name like Oak, but after some time they just change its name, that is Oak to Java. Okay, उन्होंने फिर Oak के नाम चेंज करके Java नाम प्रेफर किया. Okay, now इसके पहले इस लैंग्वेज को यूज करने से पहले हम लोग C++ लैंग्वेज यूज करते थे. उसमें क्या होता था, सपोज सी प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे कि मान लो सपोज ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स
का प्रोग्राम है लाइक प्रिंट एफ इज 1+2। ओके, सपोज करो कि हमारे प्रोग्राम में हमने सी प्रोग्राम है हमारा, ओके, उसमें हमने एक स्टेटमेंट दिया है, सिंपल प्रोग्राम है, इट विल जस्ट प्रिंट द एडिशन ऑफ 1 and 2, ओके, इट विल प्रिंट जस्ट एडिशन ऑफ 1 and 2। सो व्हाट विल हैपन while we are using this particular language, actually this language is nothing but it is platform independent, sorry, platform dependent, okay, it is platform dependent। अभी कैसे platform dependent है वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले, okay। So first of all this C program language we have to compile it, okay, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, compile करेंगे। So after compilation the assembler code will be generated, okay। कंपाइल करने के बाद असेंबलर कोड जनरेट होगा। ओके, असेंबलर कोड विल बी जनरेटेड। तो सबसे पहले इस असेंबलर कोड में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि allocate this one to some variable like is, okay, allocate this means assign the value 1 to some other variable like suppose a, okay। Another for 2, that is allocate b, okay, allocate b, this allocate b, these are the instructions in the assembler code, okay। क्या होता था, सबसे पहले हम लोगों ने सी प्रोग्राम लिखा, सिंपल सी प्रोग्राम लिखा, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, printf 1+2, printf 1+2। now what will happen in the assembler code, they have assigned that one value to some other variable and assigned two value to some other variable like this, allocate a and allocate b, and after that another instruction is there, that is add 1+2 or a+b, add 1, sorry, a comma b, add a comma b, okay। So just assume that this is the assembler code for this particular program। हमको क्या करना है, assume करना है कि ये assembler code है इस particular program की। after compilation, okay, compile होने के बाद हमारा सी प्रोग्राम किसमें कन्वर्ट हुआ है, assembler code में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी ही इंस्ट्रक्शंस है, okay। now this particular assembler code will be given to the processor, okay, this particular assembler code will be given to the processor, okay, like suppose Intel। इंटेल प्रोसेसर, हमने प्रोसेसर को ये पर्टिकुलर असेंबलर कोड प्रोवाइड किया और फिर उस प्रोसेसर ने क्या किया, इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके हमको रिजल्ट डिस्प्ले किया, ओके। एक्चुअली व्हाट विल हैपन, असेंबलर कोड इसको हम प्रोसेसर को देने से पहले क्या क्रिएट होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, लाइक सपोज 10100101, ओके। इस तरीके से वो मशीन कोड में वो कन्वर्ट होगा and after that it will given to the Intel processor and that Intel processor will process those instructions and give the result, okay, like 3, okay, give result like 3, that is 1+2, that is nothing but 3, okay। so इस तरीके से हमारा प्रोसेसिंग चलता है, ओके। सपोज करो कि ये तो हमारा इंटेल प्रोसेसर है, ओके। सपोज करो हमको कि अगर एएमडी प्रोसेसर हमारे पास होता तो क्या होगा, if suppose in some other system there is AMD processor, now what will happen for the same problem, okay, same program, C program है, C program को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद असेंबली कोड जनरेट होगा, that assembly code will be dependent to this particular processor। इंटेल प्रोसेसर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस उसने जनरेट किए, एएमडी प्रोसेसर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस जनरेट करेगा नहीं करेगा हम बता नहीं सकते, जरूरी नहीं कि ये असेंबली कोड AMD प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगा, ओके। there were some other instruction in the assembly code for this particular processor, है ना। हो सकता है इस प्रोसेसर के लिए कोई और इंस्ट्रक्शंस असेंबली कोड में जनरेट करेगा, okay, that will be depend on the processor, hence we can say that this C program is platform dependent, hence we can say that this C program is platform
डिपेंडेंट। ओके, मींस जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपका असेंबली कोड जनरेट किया जाएगा। हो सकता है ये पर्टिकुलर असेंबली कोड इस एएमडी प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होगी या नहीं भी होगी। ओके, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर, कि कौन सा प्रोसेसर वहां पर आपके पास अवेलेबल है। एएमडी प्रोसेसर है, इंटेल प्रोसेसर है, या कोई और अगर लिनक्स प्रोसेसर है, कोई और प्रोसेसर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि असेंबली कोड में कौन सी इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस सी प्रोग्राम इज that's why we can say that the C program is platform dependent. Okay, that's why we can say that the C program is platform dependent. Okay, wait. अरे पापा everything तो भी समझ में आता है नहीं घर में बातें अरे यार थैंक यू थैंक यू। अरे मतलब यार okay, so what happened in the C program, that we are talking about the platform independence, है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोल रहे हैं लोग कि सी प्रोग्राम क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ओके, एंड दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मींस वी कैन एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम कोड ओके इन एनी प्लेटफॉर्म, ऑन एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इस जावा प्रोग्रामिंग कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैसे? ओके, उसके पहले हम लोग को देखना है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी मींस क्या है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी मींस क्या होता है कि हमारा सी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। कैसे बोल सकते हैं हम लोग, सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जो असेंबली कोड जनरेट हो रहा है वो असेंबली कोड कैसे, मींस उस असेंबली कोड में कैसे इंस्ट्रक्शंस होंगे, दैट विल बी डिपेंड ऑन द प्रोसेसर। ओके, वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि असेंबली कोड में कैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इफ सपोज कंसीडर करो कि इंटेल प्रोसेसर हमारे सिस्टम में है, तो इंटेल प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपका असेंबली कोड जनरेट होगा, जैसे कि एलोकेट ए, एलोकेट बी एंड ऐड ए कॉमा बी। ओके, if suppose in some other system there is a AMD processor, okay, AMD processor यहाँ पर, तो उस समय आपके असेंबली कोड में हो सकता है कि ऐड वाला इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए। इट विल मेक इट एज एडिशन a comma b like this। ये प्लस और माइनस ये चीजें क्या एडिशन a comma b हो सकता है उसमें इंस्ट्रक्शन AMD प्रोसेसर। ओके, so hence we can say that okay it is totally depending on the प्लेटफॉर्म, मींस कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इंटेल प्रोसेसर में असेंबली कोड उसने जनरेट किया इस तरीके से, एएमडी प्रोसेसर के लिए असेंबली कोड जनरेट किया उसने same but with some different instructions like this addition a comma b in place of add a comma, हाँ, add a comma b इंटेल प्रोसेसर के लिए था, AMD प्रोसेसर के लिए उसने addition a comma b ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन उसने जनरेट किया इन असेंबली। ओके, सो this particular assembly code cannot be executed on the AMD processor। ये पर्टिकुलर असेंबलर कोड जिसमें add a comma b लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर असेंबली कोड AMD प्रोसेसर में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, है, क्योंकि AMD प्रोसेसर के लिए ऐड इंस्ट्रक्शन इनवैलिड है। AMD प्रोसेसर के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन लगेगा, एडिशन ए कॉमा बी लगेगा, जो कि वहां पर नहीं। हेंस दैट असेंबलर कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन। वो पर्टिकुलर असेंबलर कोड हम इस मशीन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। दिस इज मशीन 2 एंड दिस इज मशीन 1। मशीन 1 के लिए ये वाला असेंबलर कोड था, मशीन 2 के लिए अब नया इंस्ट्रक्शन ऐड किया उन्होंने, दैट इज एडिशन ए कॉमा बी। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पर AMD प्रोसेसर है और यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर है ना।
यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर और यहाँ पर एएमडी प्रोसेसर। इंटेल प्रोसेसर के लिए add a comma b था इंस्ट्रक्शन इन द assembler code, and in AMD processor addition a comma b ये वाला इंस्ट्रक्शन। Okay, so with this particular add a comma b instruction we cannot execute that assembly code on the AMD processor machine, है ना? क्योंकि add a comma b ये वाला इंस्ट्रक्शन AMD प्रोसेसर के लिए invalid है। Okay, hence we can say that this C program is platform dependent। Okay, means platform के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म है, प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपके असेंबलर इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे। ओके, और फिर वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन उन मशीन्स के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस सी प्रोग्राम इज platform dependent। That's why this C program is platform dependent। Okay, and Java programming language is platform independent। Now we have to see how this Java programming language is platform independent। Okay, as we have said that this is one of the feature of Java programming language। Yes, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है क्या? अरे सब लोग है कि नहीं? सौरभ शिंदे अभी ज्वाइन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्वाति, स्वाति आर यू देयर? समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम है हमारा। ओके, दैट यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ओके, आप बोर्ड में देख सकते हैं कि हमारा सी प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज सिंपल प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रिंट एफ ए 1+2, है ना, प्रिंट एफ 1+2। इस सी प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद असेंबलर कोड जनरेट किया उसने। असेंबलर कोड में अलग अलग इंस्ट्रक्शन है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक एलोकेट ए, एलोकेट बी एंड add a comma b according to your processor, that is Intel processor। Okay, this assembler code will be executed on the Intel processor and it will gives you result like this 3। Okay, but if we have to execute that particular program on some other machine like AMD processor machine, okay, so same assembler code cannot be executed on this particular AMD processor। Why? Because in the AMD processor such instructions cannot be generated, maybe or may not be। okay, maybe इंस्ट्रक्शन, वैसे इंस्ट्रक्शन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, हम लोग बता नहीं सकते, है ना, दैट बिकॉज इट इज असेंबलर कोड। ओके, तो allocate a, allocate b, in place of add a comma b, this AMD processor will generate such instruction like addition a comma b। ओके, add a comma b की जगह पर addition a comma b हो सकता है। ओके, तो इस AMD प्रोसेसर मशीन के ऊपर हम लोग ये वाला असेंबलर कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि add a comma b ये इंस्ट्रक्शन AMD प्रोसेसर के लिए इनवैलिड होता है। ओके, add a comma b इंस्ट्रक्शन AMD प्रोसेसर के लिए इनवैलिड है। उसके लिए कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है? addition a comma b। ओके, so hence that assembler code cannot be executed on the AMD processor। okay, so hence we can say that this C program is what? Platform dependent। this C program is platform dependent। मीन्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा कि असेंबलर कोड कैसे जनरेट करना। ओके, नाउ we have to see that this Java programming language is platform independent। okay, now how this Java programming language is platform independent, that we have to see। okay, yeah,
Okay, now we have to see how this Java programming language is platform independent. Now we will see how this Java language is platform independent. Okay, if suppose this is a program, if suppose this is a Java program, okay, this is the source code, है ना? It is a Java source code. ये प्रोग्राम हमारा जावा में प्रोग्राम हमने लिखा है. सपोज करो now we have to compile this particular program, है ना? कंपाइल करना पड़ेगा. After compilation this particular Java program, what will happen? It will generate one MSIL code. It will generate MSIL code. Sorry, intermediate. MSIL code नहीं. It will generate Java bytecode. It will generate Java. Java bytecode. After compiling this particular Java program, what it will create? Java bytecode. Okay, this Java bytecode is platform independent. Okay, this Java bytecode is platform independent, and this particular Java bytecode we can run it on any other machine. हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि Solaris, Macintosh, Windows, any other. Okay, on any other platform we can execute that particular Java bytecode. Okay, that means we can say that this Java bytecode is platform independent. This Java bytecode is प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जावा ये प्रोग्राम हमारा, हमने क्या बोल रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स वी कैन रन इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म. वी कैन रन इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म. नाउ हाउ, कैसे बोल सकते हैं हम, कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि हमारा जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जावा बाइट कोड. दैट जावा बाइट कोड आफ्टर कंपाइलेशन विल बी जनरेटेड. ओके, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हमारा जावा बाइट कोड क्रिएट होता है. ओके, एंड दैट जावा बाइट कोड वी कैन रन इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म. ओके, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. हेंस वी कैन सेज दैट दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म independent. Okay, hence it is platform independent. Okay, therefore we can say that it is platform independent. How we can say that it is a platform independent? After compilation it will generate a Java bytecode, and that Java bytecode we can run it on any platform like
सन सोलरिस, मैसिंटॉश, विंडोज, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इस जावा बाइटकोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम इस जावा प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ हाउ इज जावा रिलेटेड टू इंटरनेट? ऐसे जावा कैसे जावा लैंग्वेज इंटरनेट से रिलेटेड है वो हमको देखना है। ओके, that this Java program, in this particular Java program, okay, we can create web applications also। हम लोग अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस जावा प्रोग्रामिंग में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट important language, one of the most important application of this Java program is nothing but web applications। Okay, वेब एप्लीकेशन हम लोग वेब एप्लीकेशंस भी इस प्रोग्रामिंग में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड दोज वेब एप्लीकेशंस वी कैन से दैट एप्लेट एप्लीकेशन। Okay, this is one of the type of application that we can create with the help of Java programming। Okay, applet application इस टाइप का एक application हम लोग Java programming में create कर सकते हैं। That application that we can call it as a web application, okay, which will execute on internet। हम लोग इंटरनेट के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर हम लोग इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, these are used for creating web applications। applets are used to create web applications। वेब एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो एप्लेट का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, hence we can say that in this way our language is related to the particular internet। ओके, इस तरीके से हमारा लैंग्वेज इंटरनेट से रिलेटेड है। ओके, हमारे जैसे कि मान लो सपोज यूजर्स है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स है हमारे, वो यूजर्स पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ओके टू द सर्वर। वो सर्वर उन रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस करेगा और उनको रिस्पॉन्स करेगा। ओके, उनको रिस्पॉन्स करेगा। ओके, वो कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ these applet applications, with the help of these applet applications। Okay, that's why our language is related to the internet। Okay, हमारे पास अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट एप्लेट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन इज वन ऑफ दोज। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, एवरीवन समझ में आया है या नहीं आया है? अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता सकता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? आवाज कट कट के आ रही है। कोई भी एक जन बोलो बेटा, कैसे अगर मुझे, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हर एक को मेरी आवाज ऐसी आ रही है क्या? अरे बेटा, हर एक को मेरी आवाज, हाँ हाँ, अटक अटक के आ रही है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? यानी अभी जो हमने टॉपिक देखा है उसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया?
अटक अटक के आवाज, अच्छा आवाज लेट आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई भी दे रहा है आपको, आवाज भी आ रही है, क्लियर है, लेकिन टॉपिक क्लियर है। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे जाएंगे। नाउ वी हैव टू सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स वी कैन क्रिएटेड इन विद द हेल्प ऑफ दिस जावा प्रोग्राम। हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दैट वी हैव टू सी कि कौन से प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, now different types of programs that we have to create with the help of this Java programming language, that we have to see types of program. अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड दोज आर दी नथिंग बट फर्स्ट इज एप्लेट्स। एप्लेट्स, ओके, जैसे कि इंटरनेट एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखा है, इंटरनेट एप्लीकेशंस, इंटरनेट वेब पेजेस दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। इंटरनेट वेब पेजेस कैसे होता है, स्टैटिक होता है, डायनामिक भी होते हैं। दोनों तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं हमारे, स्टैटिक एंड डायनामिक, है ना। both kinds of applications we can create with the help of internet based applications। okay, so स्टैटिक एप्लीकेशंस तो हम लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बट डायनामिक एप्लीकेशन बिफोर जावा लैंग्वेज इट इज मच मोर हेक्टिक, है ना। डायनामिक वेब पेजेस हम लोगों को अगर क्रिएट करना है तो हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं than the static, but with the help of this applet feature of java program we can easily create these dynamic applications also। हम एप्लेट फीचर का यूज करके, जावा प्रोग्रामिंग का एप्लेट फीचर यूज करके डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ओके, आर यू गेटिंग? सो एप्लेट एप्लीकेशंस ये एक टाइप है हमारे प्रोग्राम का। अरे लेक्चर सुरू आहे माझा, मी नंतर कॉल करतो। हां ठीक आहे। Okay, so with the help of this applet feature of Java programming language, we can create both kinds of web pages, like static web pages also, as well as dynamic web pages also we can create. Okay, before this Java language, we can create static web pages easily, but it is we have to we have to apply more efforts to create these dynamic applications, है ना। But with the help of this applet feature of Java language, we can easily create these dynamic web pages। Okay, so this is one of the type of program we can create with the help of Java programming। Second is
कंसोल एप्लीकेशन और वो क्या बोले उन्होंने, कमांड लाइन एप्लीकेशन। कमांड लाइन एप्लीकेशन, सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्राम इज कमांड लाइन एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, इट विल नेवर गिव्स यू जीयूआई इंटरफेस, आपको जीयूआई इंटरफेस कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। मींस जीयूआई इंटरफेस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट जीयूआई इंटरफेस, जिसमें आपको अलग अलग शेप्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल्स है, इन तरीके के शेप्स आपको इस पर्टिकुलर टाइप में दिखाई नहीं देंगे। ओके, कमांड लाइन एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही आपके इन एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपका रिजल्ट भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही मिलेगा। ओके, रिजल्ट displayed on command prompt। कमांड लाइन एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही डिस्प्ले होगा, उसके लिए कोई जीयूआई इंटरफेस वो क्रिएट नहीं करेगा। ओके, थर्ड इज जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन, GUI application, that is graphical user interface application. Okay, in this kind of application we can easily हम लोग interaction, user interaction is much more efficient than this command line application. In this type of application, user interaction is much more efficient than command line application. Okay, कैसे? With the help of GUI we can instruct the user, that यूजर को क्या करना है वो हम इंस्ट्रक्शन इजीली बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या करना है। जैसे कि लॉगिन एप्लीकेशन होता है, यूजर नेम के आगे उसने यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड के आगे उसने पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन के लिए लॉगिन बटन प्रेस करना है। ओके, इस तरीके से हम लोग जियो एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। ओके, एंड थ्रू दिस जियो एप्लीकेशन वी कैन इजीली इंस्ट्रक्ट टू द यूजर्स, हम लोग इन एप्लीकेशन के जरिए यूजर को इंस्ट्रक्ट as easily बता सकते हैं instructions than in the command line application. Okay, next is serverless. Fourth type of application is servlet. SERV. Servlet applications. Okay, these servlet applications are nothing but server side applications, server side applet applications. Okay, सर्वर एप्लेट्स, सर्वलेट्स आर नथिंग बट सर्वर एप्लेट्स। ओके, अब ये कैसे वर्क करेंगे? जैसे कि इंटरनेट एप्लीकेशंस होते हैं, यूजर एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर साइड में, जैसे कि आप लोग फेसबुक यूजर है या तो फिर जीमेल यूजर है, ओके, गूगल वगैरह आप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, यूजर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर साइड। ओके, जैसे कि आप लॉग इन करते हैं फ्रॉम योर मशीन, okay, to the Gmail, you are logging from your machine and you are submitting your response। आप क्या कर रहे हैं, आपने जो भी क्रेडेंशियल्स है वो सबमिट करते हैं अपने सिस्टम में, आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर साइड। ओके, आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर साइड में। ओके, रिक्वेस्टिंग लॉगिन फ्रॉम योर मशीन, आप क्या कर रहे हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम योर मशीन, लॉगिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर मशीन, आपके मशीन में आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने एंटर किया,
सबमिट बटन प्रेस किया तो फिर लॉगिन बटन प्रेस किया। ओके, तो वहां से रिक्वेस्ट जाएगी, आपके मशीन से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। ओके, सर्वर, देयर इज अ सर्वर। ओके, सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट गई, यहां पर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग किए जाए। ओके, हियर विद इन द सर्वर आपके रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम सर्वलेट एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन। सर्वर साइड एप्लीकेशन के जरिए आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाएगा। प्रोसेसिंग करने के बाद सर्वर क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, सर्वर विल रिस्पॉन्ड। Okay, server will respond with some HTML documents. Okay, HTML document बोलो या तो फिर कोई एप्लेट एप्लीकेशंस बोलो, उनके जरिए क्या करेगा सर्वर, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। मीन्स आपका होम पेज आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे। ओके, अगर क्रेडेंशियल्स आपने सही डाले हैं तो, अगर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपने सही डाले, रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने उसके ऊपर प्रोसेस किया और फिर रिस्पॉन्ड करते समय उसने क्या किया, आपको आपका होम पेज डिस्प्ले किया। ओके, such kind of such kind of mechanism will be done with the help of these server side applications. Okay, that is nothing but servlets. Server side applications को server applets को बोलते हैं हम लोग servlets, and these servlets are for taking request from the user and giving respond to the user. Okay, यूजर के रिक्वेस्ट को लेना और यूजर को रिस्पॉन्ड करना। ओके, ये सारे प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, सर्वर सर्वलेट्स के थ्रू होती है, दैट इज सर्वर एप्लेट्स के थ्रू होती है। ओके, सो इस चौथे एप्लीकेशन में हम लोग this type of application will be done with the help of Java programming. Next is packages. Packages. Fifth type of program is nothing but packages. These packages are nothing but collection of programs. कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे हमारे सी सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स होती है ना, सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में हमारे पास हेडर फाइल्स अवेलेबल होती है, जहां पर प्री कंपाइल्ड फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है ना, प्री कंपाइल्ड फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनका हम हमारे एप्लीकेशन में यूज करते हैं। इन द सेम वे जावा प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास क्या है, पैकेजेस। उन पैकेजेस को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, ताकि जो प्री कंपाइल्ड क्लासेस है उनमें जो फंक्शंस है उन फंक्शंस को हमारे एप्लीकेशन में हम लोग यूज कर सकें। ओके, सो दीज पैकेजेस दैट वी कैन कॉल इन सी लैंग्वेज लाइक हेडर फाइल्स। ओके, हम जावा में पैकेजेस बोलते हैं जिनको सी में हम लोग हेडर फाइल्स बोलते हैं। ओके, सो दीज पैकेजेस वी कैन क्रिएट, हम हमारे खुद के पैकेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि प्री कंपाइल्ड क्लासेस हम लोग क्रिएट करके रखेंगे और हम कोई और एप्लीकेशन में उन पैकेजेस को यूज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास प्री कंपाइल्ड ऑलरेडी डेवलपर ने कुछ पैकेजेस क्रिएट करके रखे, जैसे कि AWT पैकेज है, AWT पैकेज है, IO पैकेज है, लैंड पैकेज है। ओके, these are different kinds of packages already available with us। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ये सारे पैकेजेस है। इन पैकेजेस का हम लोग हमारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि AWT दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। ओके, दिस AWT एप्लीकेशन AWT पैकेज वी कैन यूज फॉर क्रिएटिंग दिस GUI एप्लीकेशंस। ओके, GUI एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो AWT पैकेज का यूज करें। ओके, इनपुट आउटपुट IO पैकेज मीन्स अगर आपको ड्यूरिंग रन टाइम इनपुट देना है तो आप IO पैकेज में, जैसे कि डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास हमारे पास अवेलेबल है, उसका यूज करके हम लोग इनपुट दे सकते हैं। ओके, तो वो चीज अगर आपको करनी है तो IO पैकेज का यूज करना है। ऐसे अलग अलग पैकेजेस
उन्होंने हमारे पास अवेलेबल करा के रखे हैं, उनका यूज हमारे खुद के पर्पज के लिए कर सकते हैं। या तो फिर आप खुद अपने पैकेज अगर क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी हमारे पास प्रोविजन है कि आप खुद अपना खुद का पैकेज क्रिएट करो। Okay, that is also that provision also they have given. Okay, so fifth type of program is nothing but packages. Last one on the list, that is database applications. Database applications means with the help of this Java programming language we can create database applications also. जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है ना, डेटा मेंटेन करना है, हम प्रोजेक्ट प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बोलो या तो फिर प्रोजेक्ट बोलो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हमको डेटा मेंटेन करना होता है। तो डेटा मेंटेन हम लोग फाइल्स में तो नहीं करेंगे, है ना, वो C++ में कर देते फाइल्स में मेंटेन हमारा डेटा। बट इन दिस जावा लैंग्वेज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन द डेटाबेस, क्योंकि हमारे पास डेटा छोटा रहेगा नहीं, हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, उसको मेंटेन करने के लिए हमको अलग एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ JDBC जावा डेटाबेस, JDBC ODBC जावा डेटाबेस कंपोनेंट, इनका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। तो अभी फिलहाल हमको उतना डीपली जाना नहीं है, अभी फिलहाल हमको देखना है कि कौन से तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग जावा प्रोग्रामिंग का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लेट एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं विच आर यूज्ड फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग एप्लेट्स का यूज करेंगे। सेकंड इज कमांड लाइन एप्लीकेशन, दैट मींस ऐसे एप्लीकेशंस जिनका रिजल्ट हमको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही मिलेगा। Okay, no GUI interface will be created. Third type of program is nothing but GUI applications, graphical user interface applications, जैसे कि हम लोग लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं या तो फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उनमें हम लोग GUI इंटरफेस का क्रिएट करके GUI इंटरफेस का यूज करके उन एप्लीकेशंस को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज सर्वलेट्स, जैसे कि सर्वर साइड एप्लीकेशंस अगर आपको क्रिएट करना है तो सर्वलेट्स का यूज करना पड़ेगा ताकि यूजर की रिक्वेस्ट को हम लोग रिस्पॉन्ड करें। यूजर ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर को ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा रिक्वेस्ट, है ना, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के ऊपर सर्वर को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ओके, सो इन तरीके के प्रोसेसिंग को हमको क्या बोलते हैं, इस तरीके के मैकेनिज्म को हमको अगर अचीव करना है तो सर्वलेट एप्लीकेशंस हमको क्रिएट करना है। Fifth type of application is packages. Okay, packages which are already available, those we can use in our application for our own purpose, but we can create our own packages also. Okay, for some future purpose. हम आगे में अगर फ्यूचर में अगर उन पैकेजेस का यूज करना चाहे तो उन पैकेजेस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसे पैकेजेस हमको क्रिएट करना है तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रोविजन विद हेल्प ऑफ दिस पैकेजेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डेटाबेस एप्लीकेशन। मीन्स अगर आपको डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट करना है, डेटाबेस एप्लीकेशंस मीन्स ऐसे एप्लीकेशन जिसमें हमको डेटा मेंटेन करना है, डेटा मेंटेन करना है while we are running application or while we are not running application। ओके, हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं चाहे ना करें, हमको डेटा को मेंटेन करना है। फॉर दैट रीजन वी हैव टू क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशंस। ओके, सो सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आल्सो क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। आपको मैंने क्या बताया आज, डेटाबेस सॉरी सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, फिर उसके एक फीचर हमने देखा है दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, है ना, इट इज दिस जावा प्रोग्रामिंग इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसके पहले हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी देखा कि किस तरीके से हमारे लैंग्वेजेस बिफोर जावा लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड दिस जावा लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, थर्ड इज नथिंग बट हमने जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना, सॉरी कैसे कंपाइल करना नहीं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस देखा और उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स देखे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। आपको कोई डाउट्स है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके,
एनी डाउट्स? कोई डाउट है? आर यू देयर? सब समझ में है? कौन बोल रहा है बेटा? समझ गया। आवाज लटक रहा था। जस्ट मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा।